میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کی لگاتار دھجیاں اڑا رہی ہے۔ مرکز کی مودی سرکار ایک کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے، وقف قانون پر عمل کیا جا رہا ہے اور سرکار یہ سب کر رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا واضح فیصلہ آ چکا ہے اور حتمی فیصلہ کے لیے بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں سنوائی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل کے مہینے میں ہی یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں پہنچ گیا تھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے سابق چیف جسٹس یعنی جسٹس کھنہ نے عبوری روک لگا دیا تھا، انٹریم روک لگا دیا تھا، اور اس کے بعد اگلے چیف جسٹس جب بی آر گوئی سامنے آئے تو ان کی صدارت میں بھی ان کی بینچ نے بھی اس پورے معاملے پر سنوائی کی۔ دوبارہ سنوائی پوری ہو چکی ہے، حتمی فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن انٹریم روک ہے اور جو بھی اہم سیکشن ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا ان سب پر پابندی لگا رکھی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے، اور خود مرکزی حکومت نے باضابطہ ریٹن میں لکھ کر دیا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا کو کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس قانون کے بارے میں واضح طور پر نہیں آ جائے گا، حکومت اس قانون پر عمل نہیں کرے گی۔ اس قانون کے حوالے سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا جائے گا۔ جنرل تشار مہتا نے بھی سپریم کورٹ میں واضح لفظوں میں کہا تھا، اور اسی کے بعد 17 اپریل 2025 کو جسٹس کھنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے اس نئے قانون کی 2 سیکشن پر واضح طور پر روک لگا دیا تھا۔ ڈی ایم کے پاور کو بھی ایک طرح سے انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ سرکار نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ فی الحال مرکزی حکومت نئے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر عمل نہیں کرے گی۔ اس کے بعد بی آر گوئی چیف جسٹس بنے، اور جب وہ بنے تو انہوں نے ایک الگ بینچ کو تشکیل دیا اور ان کی موجودگی میں بھی کئی دنوں تک سنوائی ہوئی۔ 2 دن مسلم پکش کی طرف سے وکیلوں نے اپنی دلیل دی، اس کے بعد 2 دن سرکاری وکیلوں نے اپنی دلیلیں پیش کی اور فیصلہ کو محفوظ کر لیا ہے بی آر گوئی نے، لیکن ابھی فیصلہ سنایا جانا باقی ہے۔ اس بیچ یہی طے تھا کہ سرکار نئے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر عمل نہیں کرے گی، کوئی بھی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کرے گی، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار مرکزی حکومت نئے وقف قانون پر عمل کر رہی ہے، نوٹیفیکیشن کے ایشو کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے، پاس ہوتا ہے، تو کئی مرحلے ہوتے ہیں جب مکمل طور پر اس قانون پر عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے بل کو انٹروڈیوس کرانے کا، اور یہ بل 2024 کے اگست میں ہی مودی سرکار نے بی جے پی حکومت نے انٹروڈیوس کرا دیا تھا۔ جب اس پر ہنگامہ ہوا، اپوزیشن نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جو بی جے پی کی الائنسز پارٹی ہے انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد جے پی سی میں یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں اس بل کو بھیجا گیا تھا، کئی مہینے تک بحث ہوئی۔ اس کے بعد اپریل کے شروع میں ہی لوک سبھا سے اور راجیہ سبھا سے دونوں جگہ سے یہ بل پاس ہو گیا۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ نے بھی اس بل پر دستخط کر دیا اور یہ بل قانون بن گیا۔ اس کے بعد مرکزی حکومت نے باضابطہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور اب مرحلہ تھا کہ باضابطہ اس قانون پر عمل کیا جائے گا، لیکن اسی بیچ معاملہ سپریم کورٹ آف انڈیا پہنچ گیا۔ 13 اپریل کو تو صدر جمہوریہ کا دستخط ہو گیا تھا، لیکن 16 اپریل کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں زبردست بحث ہوئی اور 17 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دیا۔ اس کے بعد فی الحال سرکار کی طرف سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس قانون پر عمل نہیں کر رہی ہے، لیکن اس بیچ میں 6 جون کو مرکزی حکومت نے باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے ویب پورٹل کو لانچ کر دیا اور کہا کہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے اس کے جائیداد کو رجسٹر کرانے کے لیے باضابطہ منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے پورٹل کو لانچ کر دیا ہے۔ 6 مہینے کا ٹائم ہے، اور اگلے 6 مہینے میں وقف کی تمام جائیداد کا، وقف کی سبھی پراپرٹی کا اس نئے پورٹل پر رجسٹریشن ہو جانا، اندراج ہو جانا ضروری ہے۔ اگلے 6 مہینے کے بعد جس وقف کی پراپرٹی کا بھی وہاں رجسٹریشن نہیں ہوگا اس کو وقف کی پراپرٹی نہیں مانا جائے گا، اور سرکار اپنے قبضے میں اس پراپرٹی کو لے لے گی۔ یہ 6 جون 2025 کی بات ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ مرکزی حکومت نے جو پورٹل لانچ کر دیا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ ابھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں معاملہ زیر بحث ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے انترم روک لگی ہوئی ہے، اس لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیش کے تمام مسلمانوں سے، تمام ریاستی وقف بورڈ سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ فی الحال اس پورٹل پر وقف کی پراپرٹی کو درج نہ کرائے، اندراج نہ کرائے۔ اب 3 جولائی کو مرکزی حکومت نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہہ دیا کہ یہ ڈیٹا ہے، یہ طریقہ کار ہے، وقف کی پراپرٹی کا کیسے اندراج ہوگا، وقف کی پراپرٹی
से किसको पैसा दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी की आमद कितनी है, खर्च कितना है, इन तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मरकज़ी हुकूमत ने बाज़ाब्ता 3 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से, और इसमें कहा गया कि अगले 6 महीने में वक्फ की तमाम जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसकी मालूमात देनी होगी, वक्फ की जायदाद किसके कंट्रोल में है, कौन मुतवल्ली है, उसकी तफसीलात बतानी होगी, वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसी के कब्ज़े का दावा नहीं है, या किसी ने वक्फ बोर्ड पर यह दावा कर रखा है कि उसका कब्ज़ा है, किसकी तफसीलात देनी होगी, जो झगड़ा चल रहा है वक्फ की जायदाद पर, जो तनाज़ो चल रहा है उसका हल हुआ नहीं हुआ, इसकी तफसीलात बतानी होगी, वक्फ बोर्ड को या वक्फ की प्रॉपर्टी के मुतवल्ली को वक्फ की जायदाद से जो आमदनी आती है, जो इनकम आता है, उसकी तफसील देनी होगी। इसके अलावा वक्फ का निगरां कौन है, उसके हवाले से पूरी तफसीलात बतानी होगी। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से बाज़ाब्ता हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। उसके अलावा यह भी कहा गया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी का मुतवल्ली है उसको अपने वक्फ की जायदाद को अगले 6 महीना में वेबसाइट पर इंदराज कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वक्फ की प्रॉपर्टी के मुतवल्ली के शामिल किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर बाज़ाब्ता OTP आएगा, ईमेल पर OTP आएगा और उसके ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन होगा। उसके अलावा वक्फ की जायदाद का एक अलग से कोड नंबर भी तश्कील दिया जाएगा, एक कोड नंबर होगा जिस कोड नंबर के ज़रिए वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी की एक तरह से शनाख्त हो सकेगी। उसके अलावा हुकूमत ने तमाम रियासती वक्फ बोर्ड को भी आदेश दिया है इस नोटिफिकेशन के ज़रिए कि वक्फ की जो भी वहाँ अमलाक है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका सर्वे किया जाए और सर्वे करके पूरी फहरिस्त को शाया किया जाए और उसके बाद अगले 90 दिनों में तमाम फहरिस्त को अलग अलग वक्फ की जायदाद को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी लॉन्च किए गए पोर्टल पर अपडेट किया जाए, वहां तफसीलात शाया की जाए। और अगले 90 दिनों में अगर ये सब नहीं हुआ तो मजीद 90 दिनों का यानी 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, मौका दिया जाएगा और अगले 3 महीने में ये पूरा काम हो जाना चाहिए। अगर अगले 3 महीने में पूरा काम नहीं हुआ तो फिर दोबारा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का या वक्फ की जायदाद को इंदराज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो स्टेट हुकूमत है वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो वेब पोर्टल पर पूरी तफसीलात को दर्ज करे। उसके अलावा मरकज़ी हुकूमत के मशवरे से एक मुज़ाकराती टीम भी मुंतखब की जाए या एक टीम की तश्कील दी जाए, जो टीम तय करेगी कि कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि जो कलेक्टर है उसको इख्तियार होगा फैसला करने का कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन है कौन नहीं है। अगर कलेक्टर ने कह दिया कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको मोतबर माना जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वो सरासर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ है। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि एक जो फॉर्म है उसका नाम है फॉर्म 4 और एक है फॉर्म 5। तो जो वक्फ की नई प्रॉपर्टी है, पहली मर्तबा किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को वक्फ किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 4 के तहत किया जाएगा और पूरी तफसीलात बतानी होगी कि क्यों वक्फ किया, किस लिए किया और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और अगर वक्फ की पुरानी जायदाद है, वक्फ की पुरानी प्रॉपर्टी है और उसका कोई मुतवल्ली है तो उसको फॉर्म 5 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका इंदराज होगा और इसके लिए बहुत कम टाइम दिया गया है और इस टाइम में नहीं हो सका तो फिर उसके इंदराज करने का जो मौका है वो ख़त्म हो जाएगा। जो सबसे अहम बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ़िलहाल वक्फ बाय यूज़र पर रोक लगा रखा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी भी तरह की बहाली पर पाबंदी लगा रखी है। चीफ जस्टिस खन्ना ने 2 सेक्शन पर रोक लगाया था और जो 2 सेक्शन है वो सबसे अहम है। पहला ये कि वक्फ बाय यूज़र पर रोक रहेगा, यानी किसने वक्फ किया, किसने वक्फ नहीं किया, कब वक्फ किया, इस तरह का कोई भी सबूत नहीं मांगा जाएगा और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी, उसके स्टेटस के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी। दूसरा यह है कि वक्फ बोर्ड का जो स्टाफ है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं तो वो बाकी रहेंगे जो पहले से हैं। मज़ीद किसी को फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, नए वक्फ बोर्ड की कोई तश्कील नहीं दी जाएगी क्योंकि ख़दशा यह था कि जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है मुसलमान की तादाद वक्फ बोर्ड में कम हो जाएगी, नन
मुस्लिम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और वक्फ जो पूरा मजहबी मामला है, पूरा रिलीजियस मामला है, मुसलमानों का मामला है, और जिस तरह हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड में या सिखों के बोर्ड में या ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में मुसलमान कभी मुदाखलत नहीं करते, दूसरों को मेंबर नहीं बनाया जाता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स मेंबर क्यों होंगे? तो इसलिए इन 2 पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दिया था और ये पाबंदी बरकरार है। उसके अलावा हुकूमत ने कहा था कि वो वक्फ कानून पर अमल नहीं करेगी। अब जो पहले 6 जून को पोर्टल लॉन्च किया गया और अब 3 जुलाई को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा रोज़ाना ये ख़बरें सामने आती है उत्तर प्रदेश से और देश के कुछ दूसरे सूबों से, इलाकों से, जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां किसी मदरसे को सील किया जाता है, किसी मदरसे पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है, कभी किसी मस्जिद को बुलडोज़ किया जाता है, कभी किसी खानकाह को तोड़ा जाता है, कभी किसी कब्रिस्तान के हवाले से ये दावा कर देती है सरकार कि वो कब्रिस्तान की जगह नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन है। और उत्तर प्रदेश में अब तक 400 से ज़्यादा मस्जिदों, खानकाहों, मस्जिदों, दरगाहों को तोड़ा जा चुका है या सील किया जा चुका है। और ये सब काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी नए वक्फ कानून की बुनियाद पर किया है। और दूसरी तरफ हमारी मिल्लत का, हमारी मिल्ली तंजीमों का अलमिया यह है कि वक्फ कानून के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी एहतजाज हो रहा है, तो महज दिखावे का या खाना पूरी के लिए या रस्म की अदायगी के लिए कोई भी सीरियस एहतजाज नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 5 साल का अरसा हुआ है। 2020 का वो एहतजाज याद होगा आपको, जब मुसलमानों ने और मुसलमानों के साथ दूसरे लोगों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया था। पूरे देश में एहतजाज की आंधी चली हुई थी। हर जगह लोग शाहीन बाग बनाए हुए थे, सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज ऐसा था कि सरकार को झुकना पड़ा था। सीए का नोटिफिकेशन सरकार ने 2024 में आकर के जारी किया था, यानी 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट से पास करा लिया था मोदी सरकार ने। लेकिन जब मुसलमानों ने लगातार एहतजाज किया, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, तो उस प्रोटेस्ट का इतना असर हुआ कि सीए में, जिसमें यह था कि इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी ममालिक है और वहाँ मुसलमानों के अलावा जो माइनॉरिटी रहती है उसको इंडिया में शहरियत दी जाएगी, तो बिल्कुल 2023 के आखिर में या 2024 के शुरू में उस कानून पर अमल करना शुरू किया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी तरह एनआरसी कराने की बातचीत की थी, एनआरसी कराने का दावा किया था मरकज़ी सरकार ने, लेकिन अभी तक मोदी हुकूमत ने एनआरसी कराने का फैसला नहीं किया। एहतजाज की वजह से पीछे हटना पड़ा और अब एनआरसी अगर कहीं कराई भी जा रही है तो चोरी छुपे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सहारा लेकर के। जैसे बिहार में एनआरसी कराई जा रही है, लेकिन ये एनआरसी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नाम दिया है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का, यानी वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन 2003 के बाद पहली मरतबा बिहार में कराया जा रहा है, जबकि एनआरसी करना या सिटीजनशिप का सबूत मांगना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मरकजी हुकूमत डायरेक्ट करने के बजाय वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन के नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से काम करा रही है। अब दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज को देख लीजिए। देश के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ, लेकिन ये तमाम एहतजाज ऐसे हैं जिसका हुकूमत पर ज़र्रा बराबर कोई असर नहीं पड़ा है, हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हुकूमत लगातार इस पर अमल कर रही है और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने जो एहतजाज किया है तो बंद कमरे में आकर एहतजाज किया है या किसी बड़े मैदान में आकर एहतजाज किया है। और तारीख शाहिद है कि इस तरह का कोई भी एहतजाज कभी कामयाब नहीं हुआ कि आप किसी ऑडिटोरियम में जमा हो जाएं, तकरीर करें, आप रोड के किनारे खड़े हो जाएं और ह्यूमन चैन बना ले, आप किसी बड़े मैदान को भर दें, आए तकरीर करें और घरों को वापस लौट जाएं और आप लोगों को बताएं कि देखो इतने लोग आ गए थे। और उस एहतजाज पर, उस प्रोटेस्ट पर आप शुक्र मनाएं, आप खूब तारीफ करें कि देखो हमारा प्रोटेस्ट कितना कामयाब रहा, एहतजाज कितना कामयाब रहा, 2 लाख लोग आ गए, हमारी आवाज़ पर आ गए, ये हमारी ताकत है। और उसके बाद आप खूब तारीफ बटोरते रहे और पता चला कि जिस मकसद के लिए एहतजाज हुआ था उस मकसद में तो ज़र्रा बराबर कामयाबी मिली ही नहीं, बल्कि सरकार के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। वक्फ कानून पर लगातार अमल किया जा रहा है, तो ये मौका है मुहासबा करने का, ये मौका है मिली तंजीमों का जायज़ा लेने का कि मिली तंजीम अपना मुहासबा करे, जायज़ा ले कि उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका जो तरीक़ेकार है उसमें कामयाबी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या मरकज़ी हुकूमत और इसका फ़ायदा उठा रही है। 2019-20 में नौजवानों ने एहतजाज किया तो उस एहतजाज का असर दिखा, भले ही उस एहतजाज की वजह से
बेशुमार मुस्लिम नौजवानों को जेल जाना पड़ा और अभी तक जेल की सलाखों में बंद है। शर्जील इमाम शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक जेल में बंद है, उनको ज़मानत नहीं मिली है। उमर खालिद जेल में बंद है, गुलफिशा फातिमा जेल में बंद है, मिरान हैदर जेल में बंद है, शफाउर रहमान जेल में बंद है और ऐसे नौजवानों की लंबी फहरिस्त है जो अभी भी जेल में बंद है CNRC के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से। लेकिन वो जेल गए तो उनकी तहरीक का असर भी हुआ। अब जो हमारी मिली तंजीम एहतजाज कर रही है बंद कमरे में, किसी मैदान में या ह्यूमन चैन बना करके, और उसका रिजल्ट ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट मुअस्सिर नहीं हो रहा है और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला होने के बावजूद भी लगातार सरकार अमल कर रही है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।